So, dear students, yesterday we have discussed about that BSc student, BTech student has test career in the Civil Services Examination and Indian Forest Services Examination, popularly called as IFOS. Now, many students who just completed their BSc honors or BTech must have planning about the CSE examination, and optional selection is one of the best. And I think science student having BSc honors chemistry, chemistry will be obvious choice. For BTech student also, chemistry optional is a very good option. Now this year and every year, around 300 marks is highest mark. 2070, 338 marks. Dipesh Kedia. 18, 322 marks. 19, 299 marks. 20, 2096 marks, marginally decreases. Now, again, 21, 298, 2 marks less than 300. 22, 2 students secure 300 marks. Now, 23, 2 student above 300, 334 is highest. Prurat Singh Solanki, 21th rank. Mohanlal, 53 rank, 313 marks. 298, P. Bhargava. Last year उनका 300 था. So, marks, once a quantum is achieved in the science optional, it remains persistent unless until major blunder done by you. अगर एक बार आपको 300 आ गया तो उसी के राउंड मार्क्स रखेगा. दैट सर्टेनिटी इज नॉट इन अदर ऑप्शन. So science student obviously has a choice for right choice for the chemistry option. Now, from chemistry optional, an average of 12 to 13 students always get selected. If I combine the result of Indian Forest Services also, then an average of 18 students per year. This year also, 11 in civil services, 7 in IFOS. In fact, 9 in IFOS, but 2 students are common. So, chemistry is the obvious choice for the science student, BSc student, and a best option for the BTech student also. Now, chemistry optional need a better planning, and most of the students who are already started their preparation and already selected the optional chemistry now must follow the following plan for their optional. Now, a proper planning
proper planning required. The comprehensive study of the syllabus. सबसे पहले तो आप सिलेबस से जान लीजिए कि क्या क्या हमारे सिलेबस में। सिलेबस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, सिलेबस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, atomic structure, chemical bonding, liquid state, solid state. I mark this as that is unit 1. ये हमारा क्या है? ये हमारा यूनिट 1, यूनिट 1, फर्स्ट यूनिट। दैट मीन्स ये हमारा जो है वो फर्स्ट यूनिट है। यूनिट 1 अप टू सॉलिड स्टेट, gaseous state, thermodynamics, phase equilibrium. It is unit 2. Now, electrochemistry, kinetics, photochemistry, surface chemistry, that comprise of unit 3. And this coordination F block, bioinorganic P block, that is unit 4. That is unit 4 is dominated by the inorganic chemistry. Rest 3 unit exclusively belongs to the physical chemistry. ये फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट्स हैं। नाउ यूनिट 1 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में मैक्सिमम टाइम हमको इम्पोर्टेंस वाइज प्रायोरिटी देना पड़ता है। जिसकी कम इम्पोर्टेंस है हम उसको कम प्रायोरिटी देते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, आप जितना वेटेज एमएलए और एमपी को देंगे उतना वेटेज आप मुखिया और वार्ड कमिश्नर को नहीं देंगे। तो वही चीज आपका सिलेबस में ही है जिसका मार्क्स वेटेज ज्यादा है। 4 यूनिट है, 400 मार्क्स का पेपर आता है। पेपर 400 मार्क्स का होता है। यू हैव टू अटेम्प्ट 250 मार्क्स। तैयारी तो 400 का करोगे ना। नाउ एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, that unit atomic structure 40 marks 2013 to 2023. Now if we do analysis, then 40 marks 2013, 40 marks 2015, 14, 15, 30 marks, 16, 25, 17, 25, 18, 25, 19, 10, 20, 20 मार्क्स, 21 20 मार्क्स, 30 मार्क्स 22 में और 23 में 23। अगर हम एक एवरेज ले तो एवरेज ऑफ 30 मार्क्स, अराउंड 30 मार्क्स each year, 30 marks are compulsory question is asked from this. So that topic must be given due weightage. Now chemical bonding 40 marks in 13,
then in 14, 70 marks, 45 marks, in 15, 16, 35, 17, 35, 30, 18 में, 19 में 40, 20 में 50, 21 में 30, 30, and then 20. If we take the modal value, then it is 35, around 35. 35 marks का modal value है with a average of, यहां भी अगर हम देखें तो 30 मार्क्स आ रहा। केमिकल बॉन्डिंग है डायरेक्ट लिंक विथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 4th यूनिट से इसका डायरेक्ट लिंक है। नाउ liquid state 10 marks, 20 marks, except in 2015 its weightage is minimum 10 marks, maximum 30 marks. Exception is 2015 where it is asked to 45 marks, and 16 where no question is asked from the liquid state. Now solid state, very consistent topic. 15 marks, 10 marks, 20, 20, 15, 20, 10, 10, 20, 30, 20. That is average of 20 marks. अगर हम यूनिट 1 को देखें, यूनिट 1 105 marks in 2013, 140 marks in 14, 120 marks in 15, 70 marks in 16 because no question asked from the liquid state. Now in 17 it is 95 marks, in 18 it is 95 marks, in 19 again 85 marks, in 20 it is 100 marks, in 21 100 marks, in 22 110 marks, in 23 again it is 75. That is around 72, around 72 100 marks is asked from this section. And in this section there are 2 topics which is asked in the compulsory, that is topic atomic structure, chemical, generally asked in the compulsory. So this topic, this unit is important from that point of view. Now second unit is dynamic static physical chemistry. That is everything is stationary and we are observer, like gaseous state, thermodynamics, phase equilibrium. Now weightage is gaseous state, very consistent weightage except in 2014 where no question asked from this. Now 25, 20, 10, 17 में 25, 18 में 10, 19 में 15, 20 में 20, 21 में 20, 22 में 20, तो 23 में 30 marks. That is a very consistent. That is minimum 10 marks, maximum 30 marks. 10 to 30 marks is the range of this topic with an average of 20 marks. Now thermodynamics, which is a very long topic, very long and lengthy topic, but its weightage is, except in 2013 when it is asked 75 marks, but in rest of year 14 में 30 marks, 15 में 40, 16 में 35, 17 में 30 marks, then 18 में 40, 19 में 45, 20 में 40,
21 में 20, 22 में 30, 23 में 40. दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स. यहां पे आप देख रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज हमारा जो है वो 40 नंबर एवरेज है. 40 नंबर 15 में आया है, 18 में आया है, 20 में आया है, 23 में आया है. 40 नंबर का अराउंड 40 दैट इज 19 में और 35 मार्क्स 16 में आया. ठीक, 40 से कम केवल 30 से कम केवल एक ही साल आया है, दैट इज 21 में, जब इसका वेटेज बहुत कम. बट इट्स वेटेज इज एवरेज ऑफ 40 मार्क्स एवरी ईयर. नाउ फेज इक्विलिब्रियम, दैट इज 40 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20, 15, 10, 20, 15, 20, 20, 10, 20. That is an average contribution of 20. It is a numerical oriented topic. Lengthy topic. Multiplicity of factors. So always start with this. Always start with unit 2. That is gaseous state, thermodynamics and phase equilibrium. That will be more useful for you in the प्लानिंग ऑफ स्ट्रेटेजी. इस टॉपिक से कंपोजिट क्वेश्चन भी आते हैं. मतलब एक क्वेश्चन के सारे पार्ट इसी से आ जाएंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में एक लंबा टॉपिक है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक आ गया, एक थर्मोकेमिस्ट्री से आ गया, एक कार्नट साइकिल से आ गया. 3 ऐसे हो गए 10-10 नंबर के. एक गैसियस स्टेट से आ गया, एक फेज इक्विलिब्रियम से आ गया. तो आपको एक ही यूनिट से एक पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक. अगर हम देखें इस टॉपिक का जो रिलेटिव वेटेज है, अभी 23 में हमारा जो रिलेटिव वेटेज है इसका वो है 90 मार्क्स. 22 में ये था 60 मार्क्स. 21 में भी ये 60 मार्क्स था. 80 मार्क्स 20 में, 75 19 में, 70 18 में, 65 17 में, 60 16 में, 80 15 में, 50 14 में मिनिमम वेट. नाउ 140 in 2013, which is exception. That means we can say that 60 to 80 marks contribution of this topic. And average इस यूनिट का कंट्रीब्यूशन 60 to 80 marks है. And most important, it is numerical oriented. You can take advantage from that other student by commanding this unit. Unit 3rd, that is dynamic equilibrium, dynamic physical chemistry. Everything in the motion, like iron in solution, concentration dependence of reactant and product, chemical kinetics, rate of adsorption, that is surface chemistry, rate of photon emission, that is photochemistry. So that unit is electrons में एक बड़ा top section है. And this unit has a contribution, electro, a very large topic. Conductance,
electrochemical cell, application of electrochemical cell, electroanalytical technique, very vast. Now, important thing, 2013, 20, 40, 30 marks, 14 में 10 marks, 15 में 25, 16 में 20, 17 में 55, 18 में 25, 19 में 50, 20 में 50, 21 40 marks, 22 30 marks, and then 25. And then its importance will further increase. क्योंकि इसका अगर आप वेरिएशन देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका इंपॉर्टेंस ये अगर हम देखें तो कम होता जा रहा है और फिर एक बार बढ़ता है, फिर एक बार बढ़ता है। यहाँ पे देखती है कम होता जा रहा है 4, फिर 55, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया। तो इसका इंपॉर्टेंस, इसका जो है वेरिएशन जो है इरेगुलर है, अनसर्टेन है कि कितने मार्क्स का आएगा। ऐसे टॉपिक को बहुत सम्मान के साथ पढ़ना चाहिए। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, और अगर आ गया तो इसका 50 नंबर, 50 से 60 नंबर ये आपको दे सकता है अकेले। केमिकल काइनेटिक्स द मोस्ट रिलायबल टॉपिक, मोस्ट रिलायबल, इजी भी है। दैट इज 25, 50, 35, 20, 25, 25, 30, 40, 30, 30, 30. Now, it's 30 to 40 marks हम कह सकते हैं कि आता ही, एक्सेप्ट अगर हम एक साल को ले लें, दैट इज ये 16 को, तो 20 मार्क्स का आया। Photochemistry and surface chemistry are most reliable topic. ये यूनिट ही रिलायबिलिटी के लिए है, मोस्ट रिलायबल टॉपिक। आप देखिए तो फोटो 15, सरफेस 20, 10 मार्क्स। 14 में 20 फोटो, सरफेस 10 मार्क्स। 25 फोटो, 15 सरफेस केमिस्ट्री। 2020 18 में 20 25, 19 में 15 10, 20 25, 21 में 30 20, 22 में 40 40, 20 20, 23 में 20। दोनों मिलाकर 30 से 40 नंबर का टॉपिक है एंड वेरी स्मॉल टॉपिक। अभी हम टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग तरीके से भी आएंगे जो कि आपको प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प आएगा। नाउ टोटल अगर हम देखें तो इस यूनिट में अगर हम टोटल देखें तो 13 में 80 मार्क्स का आया है, 14 में 90 मार्क्स, 15 में ये बढ़कर हो गया 100 मार्क्स, 80 90 100। 16 में ये आ गया 75, 110 in 17, in 18 it is 95, in 19 it is 105, in 20 it is 125, in 21 it is 120, in 22 it is 100 marks, in 23 it is 85 marks. Never less than 80 marks. Never less than 80 marks. ये लेस देन है, ये भी लेस देन है 80, लेकिन ये कभी 80 से लेस नहीं है। 80 to 100 marks each contribution of
दिस टॉपिक एवरेज अगर हम माने, इनऑर्गेनिक यूनिट 4, इन इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनोमेटेलिक्स इज द की ऑफ सक्सेस। क्योंकि जितना भी आता है उससे मैक्सिमम परसेंटेज इससे आता है। F block, very small topic. Bio inorganic and P block, they are tailor-made topic. आप इसको सबसे बाद में करें, फ्री होने के बाद करें तो ज्यादा अच्छा। ठीक, they are only topic to memorize the fact. Now, अगर हम देखें 35 मार्क्स का कोऑर्डिनेशन प्लस ओएमसी, 2014 में 2013 में ओएमसी नहीं आया, 2014 में 30 + 20 50 नंबर का, 2015 में फिर 35 का कोऑर्डिनेशन 5 मार्क्स का ये, फिर देखिए 17 में 35 25 टोटल 60, फिर देखिए 19 में 19 में 45 20, फिर 20 में ऑर्गेनोमेटेलिक्स नहीं आया, ओनली 40 मार्क्स। 21 में इन 21 20 मार्क्स कोऑर्डिनेशन, 30 मार्क्स ओएमसी, इन 22 50 मार्क्स कोऑर्डिनेशन, 20 मार्क्स ओएमसी, इन 23 30 मार्क्स कोऑर्डिनेशन, 30 मार्क्स ओएमसी, इक्वल 60 मार्क्स। नाउ अगर हम देखें इसका इन 16 75 coordination and 60 organometallic, a year of exception, we are 50% inorganic weightage. Now रेस्ट अदर ईयर्स में अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन और ओएमसी जो है वो कम से कम 50 नंबर का, 50 इसका एवरेज। F block is very consistent on 10 to 20 marks, very consistent। ऐसे टॉपिक को बहुत सम्मान करना चाहिए। ठीक, बायो इनऑर्गेनिक very consistent on 10 to 20, except this year 40 marks। P block very consistent on 15 to 30। इनऑर्गेनिक का वेटेज अगर हम देखें तो 75 मार्क्स 2013 में था, 120 14 में, 2015 में 80 मार्क्स, 2016 एक्सेप्शन ईयर 135 केवल कोऑर्डिनेशन और इससे, बाकी 195 नंबर टोटल, 200 नियरली 195 50% वेटेज। इन 2018 it is 140, in 2019 it is 145, in 20 it is 105, in 21 it is 120 marks, in 2022 it is 130 marks, in 2023 it is 150 marks। That is inorganic chemistry average weighting, average weightage is 100 to 120 marks। ये वेटेज है इनऑर्गेनिक, वी कैनॉट इग्नोर इनऑर्गेनिक। और जिसमें अगर हम देखें तो 50 मार्क्स का वेटेज इसका है कोऑर्डिनेशन, 50 to 60 मार्क्स का वेटेज, मतलब 50% कोऑर्डिनेशन प्लस ओएमसी।
नाउ प्रिपरेशन के लिए आप पहले यूनिट 3 को करिए, फिर यूनिट 2 को करिए पहले, फिर यूनिट 3, फिर यूनिट 1, और इसका डायरेक्ट लिंकेज इससे है, डायरेक्ट लिंकेज इससे केमिकल बॉन्डिंग के बाद स्टार्ट हो जाएगी इनऑर्गेनिक। हेल्पफुल होगा, टाइम बचेगा। ठीक। वेटेज ऑफ इनऑर्गेनिक, weightage of inorganic is nearly 50%. We cannot ignore this. We cannot ignore this. इसका वेटेज 110 से 100 नंबर से 120 नंबर, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एंड इट इज ऑल्सो वेरी कंसेप्चुअल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो पार्ट हैं जो कंसेप्चुअल, easy to understand, easy to reproduce. मार्क्स स्कोरिंग है ये। Don't ignore any topic because we have a complete uniform distribution. सारे टॉपिक को टच करना। सिर्फ 2 ऐसा ईयर है, 2014 में गैसियस स्टेट से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, और 2016 में लिक्विड स्टेट से कोई क्वेश्चन। बाकी सभी टॉपिक को टच करता है। डोंट इग्नोर एनी टॉपिक। अगर कोई भी टॉपिक को आप इग्नोर कर दिए तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नाउ स्मॉलर टॉपिक्स बहुत बड़ी बात है। इसमें कौन से टॉपिक बड़े हैं, कौन से टॉपिक छोटे हैं? लिक्विड स्टेट स्मॉल टॉपिक, सॉलिड स्टेट स्मॉल टॉपिक, गैसियस स्टेट स्मॉल टॉपिक, फेज स्मॉल टॉपिक, सब फोटो केमिस्ट्री स्मॉल टॉपिक, सरफेस केमिस्ट्री स्मॉल टॉपिक, एफ ब्लॉक स्मॉल टॉपिक, बायो इनऑर्गेनिक स्मॉल टॉपिक, है कि नहीं? है ना? ये सारे स्मॉल टॉपिक, ये सारे स्मॉल टॉपिक हैं। they can be commanded, you can command these topics in 2 days, 2 दिन में आप इनके कमांड कर सकते। 2 into 7 14 दिन में आप 7 टॉपिक खत्म कर लिए, और कमांड के साथ। ये कह रहे हैं, जैसा कि हम पहले भी कहते हैं कि कॉन्फिडेंस आता नहीं है। कॉन्फिडेंस कोई ऐसा चीज नहीं है। कॉन्फिडेंस कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि आ जाए आपके पास उड़ के। कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है। एक टॉपिक किए लिक्विड स्टेट, उसके सारे न्यूमेरिकल किए, उसके सारे डेरिवेशन किए, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हमको, हाँ, हम आराम से कह सकते हैं कि नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इन दिस टॉपिक। अब आप अगर 25 प्रॉब्लम 50 प्रॉब्लम करके कॉन्फिडेंस नहीं आपको आता साइंस में, तो आपको 500 करके भी नहीं आएगा। ये बात है। ठीक, इसलिए कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, ना कि कहीं से ऊपर से आ जाता है। ठीक, तो ये हमारा है कि ये सारे टॉपिक छोटे हैं, और अगर हम इस साल का ही
2023 का ही हम दिखा दे तो आप देख लीजिए, 15 नंबर लिक्विड स्टेट 10, 20 नंबर सॉलिड स्टेट 30, 65 नंबर यहाँ आ गया ना। ये देखिए 20 नंबर फेज इक्विलिब्रिया 85, फोटोकेमिस्ट्री 105, 115, 135, 175 नंबर 2023 में स्मॉल टॉपिक से है। रैंडमली कोई भी ईयर आप सेलेक्ट कर लीजिए, 2023 नहीं, हम 2015 सेलेक्ट करते हैं। 2015 में ही अगर आप देखिए तो 45, 20, 65, 65 और 20, 85, 85, 105, 105 एंड 40, 145, 145 और 10, 155, 175 हो गया 2015 में। इनका वेटेज इतना हाई है। 14 दिन के तैयारी में हम तो 14 दिन कह रहे हैं, हम आपको टाइम दे दिए हैं कि दिस टॉपिक कैन बी वेल प्रिपेयर्ड। इन 2 महीने का हम टाइम आपको दे रहे हैं पूरे प्रिपरेशन का। उस 2 महीने में बमुश्किल इसमें आपको 14 नहीं 20 दिन लगेंगे 7 टॉपिक में, है कि नहीं? आप कहते हैं ना 2 महीने में कैसे पेपर 1 कंप्लीट होगा, तो पेपर 1 ऐसे कम कंप्लीट होगा। इन टॉपिक का वेटेज देखिए आप। क्यों हम पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स में लगे हुए हैं? आप कहिएगा जिसमें सॉलिड स्टेट 0 आया है, सॉलिड स्टेट इस ईयर में गैसियस स्टेट 0 मार्क्स का आया है, फिर भी देख लीजिए 30 मार्क्स, 30, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, 70, 80, 100, 110 मार्क्स इनका वेटेज रहा है कि नहीं? ये देखिए यहाँ लिक्विड स्टेट 0 आया है, लेकिन फिर भी 10 एंड 10, 20, 35, 35 and 35, 70 marks, 70 marks and 35, 105 का वेटेज है। 100 से 150 मार्क्स का वेटेज हम इसको दिए हैं एवरेज स्मॉलर टॉपिक। इन स्मॉलर टॉपिक्स राइटिंग अप्रोच इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्मॉलर टॉपिक है तो राइटिंग अप्रोच भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है। राइटिंग अप्रोच तो तब हमको चाहिए ना जब कनेक्टिविटी हो। वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है, हम फॉर्मूला डिराइव किए हैं, हो गया। कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है तो इनका कोई टॉपिक से रिलेशन है ही नहीं, इतने छोटे टॉपिक है। आराम से डेफिनेशन दिए, पॉइंट दिए और उस फैक्टर को एक्सप्लेन कर दिया। कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो दे दिया। तो राइटिंग अप्रोच भी नहीं है। और अगर राइटिंग अप्रोच नहीं है तो अगर इस टॉपिक से आप अटेम्प्ट करते हैं 100 मार्क्स में 70% मार्क्स आपको आता है, तो आप देखिए 70 मार्क्स स्मॉलर टॉपिक से आया है 20 दिन में। लार्जर टॉपिक जो है, टॉपिक लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन, ये टॉपिक है, लार्ज टॉपिक है। इनको भी ब्रेक कर करके पढ़िए। हाउ टू टैकल दी लार्ज टॉपिक ये हम अलग से बताएंगे, लेकिन अब 100 नंबर इससे अटेम्प्ट आप किए हैं, 150 नंबर आप बड़े टॉपिक से अटेम्प्ट कर रहे हैं। हम बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, तो भी आपको इन टॉपिक में राइटिंग अप्रोच का इंपॉर्टेंस है। आपका राइटिंग अप्रोच बहुत खराब है, फिर भी 50% नंबर अगर आ रहा है तो 150 में 70।
145। और आप देख लीजिए, आपको हम मार्कशीट दे देंगे। 2015 से जो स्टूडेंट हैं, 2015 से 2024 तक, 2023 तक, सबके मार्कशीट दे देंगे। पेपर वन में देखिएगा, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के 140 से 150 के बीच में मार्क्स है, क्योंकि हम इसी प्रिंसिपल पे काम करवाते हैं। अब जिसकी राइटिंग अप्रोच जो अपना बढ़ाते गया, वो पहुंच गया 160 पे, 150 पे पहुंच गया, 155 पे पहुंच गया। लाइक लास्ट ईयर उद्धम पटेल का 157 था, इस साल पुरुराज का 160 था, मोहनलाल का 157। तो ये आपका, लेकिन मिनिमम जो है इतना क्राइटेरिया है कि आप बेटे जब भी आप क्वेश्चन भी सिलेक्ट करें, इनमें क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन, इनसे कंपलसरी क्वेश्चन भी लगते हैं। ये तो आपकी मजबूरी है, आपको तो करना ही है इससे। ये जो छोटे टॉपिक हैं, रेस्ट 3 क्वेश्चन आप उसी सेक्शन से सिलेक्ट करिए जिसमें कि छोटे टॉपिक का डोमिनेशन, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड मार्क सिक्योरिंग फॉर यू। दैट इज द स्ट्रेटेजी अबाउट द पेपर वन। नाउ नेक्स्ट हम आपको स्ट्रेटेजी प्लान करने का बताएंगे पेपर टू का। वो भी इंटरेस्टिंग पेपर है, उसमें भी इस साल पुरुराज सिंह सोलंकी को 174 आया। पास्ट में इस पेपर में दीपेश के पिया को 182 तक आया इसमें। तो यह आपका स्ट्रेटेजी है, और इस अनुसार आप कोई भी चीज, कोई भी प्रिपरेशन, नॉलेज इज अनदर वन थिंग, स्ट्रेटेजी एंड मैनेजमेंट इज अनदर, कि हम 145 तक कैसे पहुंचे। तो आई थिंक यू विल analyze this steps, this discussion provided by me, and you will go accordingly. My new batch is starting from 10th of June, but due to prelims, only 2 classes will be taken before the 17th June. So you can join this batch 10th June batch on the 17th June without any loss of any topic. Okay? So batch will start from my new batch will start from new batch will start from
10th of June, 10th June from 5:30 p.m. and you can also join this batch from 17 to 23rd June in the same batch. And start the preparation of chemistry optional. Thank you and all the best.